اور پھر یہ بھی بتایا کہ ہم ان کے مہمان ہیں اور برکتیں حاصل کر کے اپنے قبیلوں میں جا سکتے ہیں، اور یہ محبت اور یگانگت افریقی قبیلوں کی ضمانت ہے، اور ضمانت دینے کے لیے دیوتا نے آسمان سے زمین کا رخ کیا ہے۔ چنانچہ ہمارے لیے قیام کی جگہ موجود ہے جہاں ہمیں ضروریات زندگی کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کے بعد چیف یہ جگہ ہمارے لیے منتخب کی گئی ہے۔ ہاں، یہاں ہم اپنے جھونپڑے نہیں بنا سکتے، قبیلے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم بھی اس وقت تک یہاں مقیم رہیں گے جب تک کہ دیوتا کی طرف سے ہمیں ہدایت نہ مل جائیں۔ اوٹوکان خاموش ہو گیا۔ میں پروفیسر جوناتھن ووڈ وغیرہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی قیام گاہوں کا انتخاب شروع کر دیا۔ چھوٹے بڑے پتھروں کی یہاں بہتات تھی، اور دوسرے قبائل جو آس پاس یہاں آباد تھے اور جن سے ہمارا فاصلہ خاصا رکھا گیا تھا، اور سارے قبیلوں کے فاصلے ایک دوسرے سے اتنے ہی تھے۔ ان کے مانند ہم نے بھی پتھروں کے ڈھیر لگا لگا کر اپنے لیے پناہ گاہیں بنا لی۔ ہمارے میزبانوں نے ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنے دیا، اور بہت سے ایسے لوگ ہمیں دور سے آتے ہوئے نظر آئے جن کے کاندھوں پر بینگی قسم کی چیز تھی، یعنی ایک لکڑی جس میں ترازو جیسے 2 پلڑے لٹکے ہوئے تھے، اور ان پلڑوں میں عجیب و غریب قسم کے پھل پتے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بھری ہوئی تھی۔ ایسے بہت سے لوگ برق رفتاری سے ہماری جانب بڑھ رہے تھے، اور ان کی رہنمائی انہی میں سے چند افراد کر رہے تھے جو پہلے ہمارے استقبال کے لیے آئے تھے۔ اوٹوکان نے آہستہ سے کہا، پولان، تم اور سالون چلے جاؤ اور ان لوگوں کا استقبال کرو۔ ایک ہی آدمی کا بار بار سامنے جانا ٹھیک نہیں، کہیں انہیں شک نہ ہو جائے۔ آنے والوں نے وہ سامان ہمارے سامنے انبار کر دیا، اور وصول کرنے والوں سے کچھ کہتے رہے۔ اس سامان میں پانی کے برتن بھی شامل تھے جو لکڑی کے تختے جوڑ کر بنائے گئے تھے۔ اوپر سے ان کے منہ چھوٹے چھوٹے تھے اور ان میں پانی بھرا ہوا تھا، گویا ہمارے طعام و قیام کا معقول بندوبست کر دیا گیا تھا۔ شکریہ ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کو روانہ کر دیا گیا، اور ہم ان تحائف کو دیکھنے لگے جو ہمارے لیے آئے تھے۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی تھے، پھل اور سبزیاں بھی تھیں۔ اس سے زیادہ کی ضرورت بھی نہیں محسوس کی جاتی تھی کہ ان لوگوں کے لیے یہی خوراک انتہائی عمدہ خوراک تصور کی جاتی تھی۔ اس خوراک کو احتیاط سے محفوظ کر لیا گیا، پانی کے برتن جگہ جگہ رکھ دیے گئے۔ پولان اور دوسرے آدمی نے بتایا کہ ان لوگوں نے کہا ہے مزید جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ مانگ لی جائے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے اوٹوکان کہ ہمیں ان کی بستی میں داخل ہونے کی آزادی ہے یا کچھ پابندیاں ہیں۔ میرے خیال میں یہ بات ہمیں ان لوگوں سے نہیں معلوم کرنا چاہیے، بلکہ تم مجھے اجازت دو کہ میں یہاں موجود دوسرے قبیلے کے لوگوں سے رابطہ قائم کروں۔ یقیناً ہمیں ان سے بہتر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ تمہارا اندازہ درست ہے اوٹوکان، لیکن فوراً ہی کسی دوسرے قبیلے کے لوگوں سے جا ملنا ذرا مناسب نہیں ہوگا۔ کچھ وقت یہاں گزار لو، ممکن ہے اس کے بعد وہی لوگ تمہیں دیوتا کی زیارت کے آداب بتائیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے چیف، اوٹوکان نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ ہم کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اوٹوکان نے دوسرے لوگوں کو دور ہی سے دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں کی زندگی میں کسی طرح کی پابندیاں نہیں ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جو کچی ترکاریاں، کچا گوشت کھانے کے عادی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے جگہ جگہ آگ روشن کر رکھی تھی۔ چنانچہ ہم نے بھی مٹی کے ڈیلے اور پتھروں کو جمع کر کے ان کے درمیان جھاڑ جھنکاڑ اکٹھا کر کے آگ روشن کر لی۔ اس گوشت کو تو میں ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا جو لایا گیا تھا، اور جس کے بارے میں یہ تصدیق نہیں ہو سکتی تھی کہ کون سے جانور کا ہے، لیکن سبزیاں اور پھل کھا کر پیٹ کا جانم بھرا جا سکتا تھا۔ تمام تیاریاں جاری رہیں، بالکل اسی طرح زندگی کا آغاز کر دیا جیسے دوسرے جنگلی لوگ کر رہے تھے۔ ہم نے انہیں ذرا بھی شبے کا موقع نہ دیا۔ میری نگاہیں اطراف میں بھٹکتی رہیں، یہاں سے بھی اس عظیم الشان بت کے درشن کیے جا سکتے تھے جو ان جھونپڑوں کے درمیان بلند و بالا حیثیت رکھتا تھا، اور بدستور آسمان کی جانب انگلی اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ بت روشن کب ہوتا ہے، آیا ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر کسی خاص موقع پر۔ ایک پتھر پر بیٹھ کر میں نے اپنی نظریں بت کی طرف مرکوز کر لیں اور اس کا بغور جائزہ لینے لگا۔ پھر میرا ذہن بھٹک کر اسٹیفن براکوڈا کی جانب چلا گیا۔ یا اس کی رہائش گاہ کہاں ہو سکتی ہے؟ ایک بات تو ثابت ہو چکی تھی کہ براکوڈا انتہائی یار و مکار شخص تھا۔ اس نے یہاں جس عمدگی سے اپنا جال بچھایا تھا وہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بہت دیر تک اس پتھر پر بیٹھا براکوڈا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسی دوران اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ قبیلے کے لوگوں کا بستی میں آنا جانا ہے یا نہیں، اور یہ اندازہ لگانے میں مجھے دقت نہیں ہوئی کہ قبیلوں میں آباد لوگ بآسانی بستی کی جانب آ جا رہے ہیں، ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی، اور یہ بات باعث اطمینان تھی۔ اور شاید
स्टीफन बराकोडा की सबसे बड़ी हमाकत, क्योंकि कम अज कम अपनी बस्ती के इस हिस्से को जहाँ वो खुद आबाद था उससे अजनबी लोगों से पाक करना जरूरी था। लेकिन हर बुराई का खात्मा किसी न किसी कमजोरी या गलती की बुनियाद पर होता है। स्टीफन बराकोडा इस बात से मुतमिन होगा कि आने वालों में से कोई भी इस हैसियत का आमिल नहीं हो सकता जो उसे नुकसान पहुंचा सके। वो उनकी तरफ से मुतमईन था और उसने उन्हें एतमाद में लेने के लिए हर तरह की आज़ादी फराहम कर रखी थी, लेकिन यही आज़ादी उसके लिए मुसीबत का बायस बन सकती थी। ओटो खान अपना मिशन पूरा करने के लिए चला गया। वो टहलता हुआ एक कबीले के लोगों के पास पहुंच गया। हम उसे देखते रहे लेकिन कोई खास बात नहीं हुई और ओटो खान तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वापिस आया। इस वक्त शाम का झटपटा फिजा पर मुसल्लत हो चुका था और जगह जगह रोशनी होने लगी थी जो मशलों की थी। मशलों की बू से फिजा में चनान सी पैदा हो गई थी और हवा इस नाखुशगवार बू को इधर उधर उड़ाए लिए फिर रही थी। ओटो खान सीधा मेरे पास पहुंच गया। उसने कहा, चीफ, मैंने उन लोगों से बहुत सी मालूमात हासिल की हैं जो यकीनन आपके लिए कारआमद हो सकती हैं। हाँ ओटो खान, मुझे उस बारे में बताओ। जिस कबीले के लोगों से मैंने मुलाकात की वो बहुत दूर दराज से आया है और उसका नाम कादाटा है। कादाटा कबीले के लोगों में कुछ ऐसे लोग पहुंचे थे जिनका ताल्लुक एक खास मिशन से था। उन्होंने कादाटा के लोगों को पैगाम दिया कि बोनिका में देवताओं का नुज़ूल हुआ है और ये देवता बरकतें नाजिल करने वाला है और अगर उसके हुजूर हाजिरी देकर उसके अहकामात की पैरवी कर ली जाए तो कबीलों की तकदीरें बदल जाती हैं। कुछ लोगों ने मुखालफत की और कुछ लोगों ने कहा कि देवताओं की तौहीन हमेशा कबीलों पर तबाही का बायस बनी है, चुनांचे देवता से बरकत हासिल करना जरूरी है। उसके बाद ही कबीले के तकरीबन 60 अफराद यहाँ आए। उन लोगों को खुली इजाज़त है कि देवता की ज़ियारत करें और जब तक दिल चाहे करते रहें। बोनिका की तरफ आने वाले मेहमानों की हर तरह खातिर मिदारत की जाती है और वो जितने दिन भी यहाँ क़याम करना चाहें क़याम कर सकते हैं। देवता की तरफ से उन्हें पैगामात मिलते हैं और कादाटा कबीले को भी देवता का पैगाम मिल चुका है। खूब, पैगाम क्या है? मैंने सवाल किया। पैगाम ये है कि चीफ सहराए आजम में रहने वाले कबीलों को एक बहुत बड़ा खतरा लाहक है। बाहर से आने वाले उनका वजूद और उनकी बस्तियों का वजूद मिटा देना चाहते हैं और उसके लिए ज़बरदस्त पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। बाहर से आने वालों ने अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी कार्रवाइयों के लिए मुंतखब कर लिया है और वहाँ उनका क़याम है। कबीलों को इतला दी गई है कि वो जंगी तैयारियां करें और ऐसे जवानों को तैयार कर लें जो उन लोगों से जंग कर सकें कि कुर्बानी के बगैर कौमों की बका बहुत मुश्किल होती है। देवता ने उनसे कहा कि एक मौजू वक्त का इंतजार किया जा रहा है, फिर उस मौजू वक्त पर लातादाद कबीले जमा होकर बाहर से आने वालों की सिमत यलगार करें और उन्हें मिटा देंगे। यही पैगाम हर कबीले के लोगों को दिया जाता है और कादाटा वालों को भी ये पैगाम मिल चुका है। वो अब वापसी की तैयारियां कर रहे हैं। क्या उन्हें बोनिका की खास बस्ती में आने जाने की आज़ादी है? वो हर जगह आसानी से घूम फिर सकते हैं। बोनिका में बाजारों का सिलसिला शुरू हो चुका है, वहाँ से उन्हें मुफ्त अशिया मिलती हैं और अगर वो उनके इवज़ कुछ देना चाहें तो वो भी कबूल कर लिया जाता है। ठीक है ओटो खान, तुम्हारी मालूमात हमारे लिए इंतहाई कीमती हैं। और कोई हुक्म चीफ? ओटो खान ने फरमाबरदारी से कहा, नहीं, मेरा ख्याल है फ़िलहाल इतनी मालूमात काफ़ी हैं और ये अच्छी बात है कि कम अज़ कम उन लोगों के दरमियान आने जाने की पाबंदी नहीं। और कोई ऐसी खास बात तो नहीं ओटो खान जिससे हमें मोहतात रहना हो? नहीं चीफ, इसके अलावा और कुछ नहीं मालूम हो सका, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, अभी मैं दूसरे कबीले के लोगों से भी मिलूंगा। हाँ, यहाँ बहुत से कबीले मौजूद हैं, मैंने कहा और ओटो खान खामोश हो गया। प्रोफेसर जोनाथन वुड मेरे नज़दीक मौजूद थे। प्रोफेसर के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। रात गहरी हो गई और दफतन हमने फिजा में एक तेज़ रोशनी महसूस की। उस वक्त हमारी आंखें हैरत और दिलचस्पी से चमक उठी जब हमने उस भूरे पत्थर के बुत को किसी सोने के मुजस्मे की मानिंद चमकते देखा। यकीनन चांद नहीं निकला था, ये रोशनी उस बुत के अंदर ही से मुनक्स हो रही थी, जबकि दूर से देखने पर वो शीशे का भी नजर नहीं आता था। बुत की इस कैफियत पर हम सभी लोग उसकी जानिब मुतवज्जो हो गए थे और एक बुलंद जगह से उसका नज़ारा कर रहे थे। तब हमने अजीबो गरीब मनाजर देखे। वो हाथ जो आसमान की जानिब उठा हुआ था आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरा और फिर अपनी जगह से उठकर सीधा हो गया। हमने उस हाथ से सुर्ख रंगों के फूलों की बौछार होते देखी। ये आतिशी फूल थे जो बुत के हाथ से निकलकर फिजा में मुंतशिर हो रहे थे और परवाज करते हुए दूर दूर तक जा रहे थे। प्रोफेसर जोनाथन जल्दी से अपने कुछ आलात निकाल कर मसरूफ हो गया। उसने अपने लिए एक तनहा जगह मुंतखब कर ली थी और यहाँ वो अपने आलात की मदद से उस बुत के बारे में कुछ तजिया कर रहा था।
मैंने या किसी और ने उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की, बस हम अपने तौर पर उसका जायजा लेते रहे। बुद्ध का हाथ थोड़ी देर तक फूल बरसाता रहा और वो सोने की तरह चमकता रहा। फिर हमने एक आवाज़ भी सुनी जिसका मफहूम दूरी के सबब हमारी समझ में नहीं आ सका, लेकिन यह अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि वो यकीनन कोई इंसानी आवाज़ थी और उसी बुद्ध से नशर हो रही थी। अफ्रीका के रहने वाले सादालू इंसानों को मुतासर करने के लिए ये जादुई एजाज बहुत काफ़ी था, और यकीनन पत्थर की इस रोशन और बोलते बुद्ध को देखकर कौन था जो अपने ज़हन पर काबू पा सकता था। वैशी सिर्फ तोहमात पर ही यकीन कर लेने के आदी थे। उन्हें मुतासर करने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता था। आतिशी फूल निकलना बंद हो गए और बुद्ध का हाथ फिर अपनी जगह वापस आ गया। अब उसकी उंगली उसी अंदाज में आसमान की जानिब उठी हुई थी और रफ्ता रफ्ता उसकी रोशनियां मध्यम पड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि फिजा में फैला हुआ सुनहरा उजाला ख़त्म हो गया और फिर अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिनमें ढोल बजने और दरख्तों के तने पीटने की आवाज़ें भी शामिल थी। गालिबन कोई कबीला ज़ियारत के लिए गया था और अब वो फैज़याब होकर वापस आ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और प्रोफेसर जोनाथन की तरफ देखने लगा। बुढ़ के चेहरे पर भी गहरी संजीदगी के आसार थे। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर जोनाथन अपनी जगह से उठकर मेरे करीब पहुंच गया। उसने अपने पास मौजूद आलात संभाल कर रख लिए थे। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो वो मुस्कुरा कर बोला, वही सब जिसकी तवक्को थी क्या प्रोफेसर? मैंने वज़ाहत तलब निगाहों से उसे देखते हुए कहा, वो बुद्ध यकीनी तौर पर किसी ऐसे मादे से बनाया गया है जो रोशनी को जज़ब करता है। इस रोशनी को पूरे बुद्ध में फैलाने के लिए शायद किसी जनरेटर वगैरह से काम लिया जाता है, जो यकीनी तौर पर ज़ेरे ज़मीन होगा, क्योंकि उसकी हल्की सी भी आवाज़ फिजा में मुंतशिर नहीं होती। वो आवाज़ जो बुद्ध के मुंह से निकली थी ताकतवर स्पीकर का कमाल था, जिनकी पुष्ट पर यकीनन कोई इंसान रहा होगा। ये कोई ऐसी बात नहीं अली जो काबिल हैरत हो। ये सब कुछ करना नहायत आसान है, लेकिन इन तोम परस्त अफ्रीकियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। 100% प्रोफेसर, 100%। यहाँ आकर हमें ये अंदाज़ा हो चुका है कि स्टीफन ब्रैकोडा किस तरीके से काम कर रहा है। अब इसमें अपने लिए गुंजाइश निकालनी है। ओटोकान के बयान के मुताबिक अभी कबीले तैयारियों की मंजिल में हैं। उनको पैगामात भेजे गए हैं और ये बात हमारे लिए काबिल इत्मीनान है कि फौरी तौर पर ये कबाइल लाइन ऑफ क्रूजल की जानिब हमले की गर्ज से नहीं बढ़ेंगे, बल्कि जब उन्हें हदायत मिलेगी तब वो अपने लश्कर बोनिका की तरफ रवाना करेंगे। बोनिका ही से उन लश्कर को लाइन ऑफ क्रूजल की जानिब रवाना किया जाएगा। गोया कम अज कम इस बात का तो इत्मीनान हो गया था कि फौरी तौर पर लाइन ऑफ क्रूजल को कोई खतरा नहीं। अगर हम बोनिका में इनका पूरा मंसूबा ख़त्म कर देते हैं तो मेरे ख्याल में ये खतरा टल सकता है। हाँ, लेकिन अली, कबाइलों के ज़हन में जो बात बैठ गई है उसके लिए क्या करोगे? हाँ, ये सोचने का मसला है। लेकिन अगर यही चमकता हुआ देवता उन लोगों से कहे कि अफ्रीका में क़याम करने वाले उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके लिए दोस्ती और अमन का पैगाम रखते हैं, तो कबीलों का जोश ठंडा पड़ सकता है। प्रोफेसर जोनाथन पुरख्याल अंदाज में सारी लाने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन सबसे पहले तो हमें स्टीफन ब्रैकोडा की कुव्वत तोड़ना पड़ेगी। यकीनन हमारा पहला काम यही होगा, मैंने जवाब दिया। बुढ़ कहने लगा, चीफ, जब हमें बोनिका की बस्ती में जाने की इजाज़त है तो फिर क्या ये ज़रूरी है कि हम यहीं क़याम करें? यकीनन बोनिका वाले इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि हम उनके दरमियान रहें, और फिर हमारे वहाँ रहने का कोई जवाब भी तो नहीं बनता। लेकिन उनसे दोस्ती तो बढ़ाई जा सकती है। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूछा। मैं बस्ती में जाने की इजाज़त चाहता हूँ चीफ। बूढ़, तुम यहाँ की ज़बान सही तौर पर नहीं जानते, इसलिए तुम्हें दिक्कत तो पेश नहीं आएगी। इशारों की ज़बान सारी दुनिया में समझी जाती है और सारी दुनिया में गूंगे लोग भी होते हैं। मैं एक गूंगा हूँ और अपने दोस्तों से इशारों की ज़बान में गुफ्तगू कर सकता हूँ। अगर तुम अपने तौर पर इसे मुनासिब समझते हो तो तुम जैसा पसंद करो, लेकिन अगर स्टीफन ब्रैकोडा के किसी भी आदमी को तुम पर शक हो गया तो यूं समझ लो सारे लोगों पर आफत आएगी। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो सके। यही इजाज़त मैं भी तुमसे चाहता हूँ अली, प्रोफेसर जोनाथन ने कहा। गोया आप भी वहाँ दोस्ती करने जा रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या अर्ज है। प्रोफेसर जोनाथन ज़हीन और संजीदा आदमी था, उसकी इस ख्वाहिश को मैं रद्द नहीं कर सकता था। यकीनन उसने कुछ सोचा ही होगा। चुनाचे मैंने शाने हिलाकर कहा, ठीक है प्रोफेसर, अगर आप लोग ये मुनासिब समझते हैं तो मैं तो पहले भी इसे टीम वर्क करार देता हूँ। मैं किसी पर अपनी राय मुसल्लत नहीं करना चाहता। इस सिलसिले में जो कुछ करना चाहता है पूरे एतमाद और होशियारी के साथ कर सकता है। शुक्रिया अली, जोनाथन ने कहा। वैसे मैं एक अहम जिम्मेदारी
ओटोकान या उसके किसी और साथी के सुपुर्द भी करना चाहता हूँ, जो इंतहाई ज़रूरी है। वो क्या? ओटोकान के कान खड़े हो गए। ओटोकान, हम लोग सानबीन से ताल्लुक़ रखते हैं और यकीनन सानबीन वाले अभी इस तरफ नहीं आए, वरना हमारी आमद को ताज्जुब की निगाह से ज़रूर देखा जाता। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम साहिली इलाके पर या उन रास्तों पर निगाह रखो जो बोनिका की सिमत आते हैं, ताकि अगर सानबीन के लोग आ रहे हों तो हम अपने तौर पर मोहतात हो जाएं। दुरुस्त कहते हो चीफ। इस मुमकिन खतरे का सद्देबाब करने के लिए ये एहतियात ज़रूरी है। आप इत्मीनान रखें, मैं चंद आदमियों की ड्यूटियाँ लगाए देता हूँ। ओटोकान से गुफ्तगू करने के बाद मैंने अपने लिए एक जगह मुंतखब की और फिर पत्थरों से चुने हुए एक ढेर के करीब ज़मीन साफ करके लेट गया। ज़हन मुस्तकिल मसरूफ़ अमल था और मुख्तलिफ ख्यालात की अमाज का बना हुआ था। मैं सूरत हाल का हर पहलू से जायजा ले रहा था और किसी इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। स्टीफन ब्रैकोडा से जंग अब इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गई थी। हमारी कोई भूल या गलती हमारी शिकस्त का सबब बन सकती थी। रात के किसी हिस्से में नींद आ गई और सुबह तक सोता रहा। जागा तो तमाम लोग अपने अपने मशागल में मसरूफ़ थे। खाने पीने की जो एशिया मौजूद थी उनसे नाश्ते का बंदोबस्त किया जा रहा था। मैंने अपने लिए चंद फलों का इंतखाब किया। इसके अलावा भला यहाँ और क्या मिल सकता था। प्रोफेसर भी मेरे लिए नाश्ते में शरीक हो गए। मैंने बुढ़ की तलाश में निगाहें दौड़ाईं, लेकिन बुढ़ मुझे कहीं नजर नहीं आया। बुढ़ कहाँ गया प्रोफेसर? मैंने पूछा। बुढ़? प्रोफेसर ने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा और फिर चौंक कर बोला, अरे वो तो मुझे सुबह से नजर नहीं आया, हालांकि मैं बहुत पहले का जागा हुआ हूँ। क्या मतलब? मेरा ख्याल है बुढ़ यहाँ मौजूद नहीं है। मैं खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन बुढ़ मौजूद नहीं था। बुढ़ को हर मुमकिन जगह तलाश कर लिया गया, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। सब लोगों ने परेशानी का इजहार किया, लेकिन मैंने मुतमईन अंदाज में कहा, नहीं प्रोफेसर, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो अपनी हिफाजत करना जानता है। ज़रूर वो अपने प्रोग्राम के तहत गया है, मुझे भी यकीन है। लेकिन हमें यहाँ एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि किसी की ज़रा सी भी गलती से हालात हमारे खिलाफ हो सकते हैं। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है मिस्टर जोनाथन, लेकिन एक बात बार बार मेरे मुशाहिदे में आई। बाज़ औक़ात जितनी ज़्यादा एहतियात बरती जाए उतने ही नुकसानात ज़्यादा होते हैं। फिर हमें तेज़ रफ्तारी से अपना काम करने के लिए इस किस्म के खतरात मोल लेना ही पड़ेंगे। जोनाथन ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ ये बात मैं जानता हूँ। अगर आप मुतमईन हैं मिस्टर अली, तो फिर मुझे तो कोई तशवीश नहीं। मेरे ख्याल में बुढ़ खुद भी समझदार आदमी है, मेरे साथ मुहिम्मात में शरीक हो चुका है। उसकी हरकतें बाज़ औक़ात बचगाना ज़रूर होती हैं, लेकिन उसने हमारे लिए कभी कोई बड़ा ख़तरा नहीं पैदा किया। जोनाथन खामोश हो गया। सारा दिन बुढ़ का कोई पता नहीं चल सका। ओटोकान और मैकनो को मैंने इस प्रोग्राम के तहत भेज दिया था जो हम पहले तरतीब दे चुके थे, यानी ये कि अगर इत्तफाक से सानबीन के बाशिंदे भी इसी दौरान इधर का रुख कर लें तो उन पर निगाह रखी जाए। ये रात भी उसी अंदाज में गुजर गई। बुढ़ अभी तक वापस नहीं आया था। उसकी इस तवील गुमशुदगी ने अब किसी कदर मुझे भी तशवीश का शिकार कर दिया था। चुनांचे दूसरे दिन के लिए मैंने कुछ मंसूबे तरतीब दे दिए। प्रोफेसर जोनाथन से मैंने दूसरी सुबह को कहा मैं खुद भी अब बस्ती में चहलकदमी करूंगा। जोनाथन ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर उन्होंने कहा, मैं रात को भी अपने काम में मसरूफ रहा हूँ। यहाँ इंतहाई मुनज़्ज़म पैमाने पर पैगामात के जरिए तरीक़े गुफ्तगू राइज है। जगह जगह एक दूसरे को पैगामात नशर किए जाते हैं। खूब प्रोफेसर, आपकी मशीन तो काम कर रही होगी। हाँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात मालूम नहीं हो सकी जो कारआमद साबित हो। एक बात मैं भी आपको बता दूं मिस्टर अली कि जब आप वापस आएँ तो मुमकिन है मैं आपको ना मिल सकूं, लेकिन मेरे बारे में किसी तशवीश का शिकार ना हो। हम सब को इन हालात में अपनी फहम फरासत के मुताबिक काम करना है प्रोफेसर जोनाथन, इसलिए मेरी तरफ से किसी पर कोई पाबंदी नहीं, मैंने जवाब दिया। और प्रोफेसर ने सर खम करके मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं अपने लिए जो नए अमल मुंतखब कर चुका था उसके तहत काम करने निकल गया। मैंने फैसला किया था कि बस्ती के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल होकर उन लोगों के मामूलात का जायजा लूंगा। लिहाजा इस प्रोग्राम के तहत मैं बस्ती की जानिब चल पड़ा। बोनिका पूरी तरह आबाद था और वहाँ जिंदगी में एक सलीका पैदा हो चुका था। यकीनन स्टीफन ब्रैकोडा ने इन लोगों पर दस्तरस हासिल करने के बाद उन्हें तहजीब से आशना करने की कोशिश की होगी। इनकी बोदोबाश में कुछ बेहतरी पैदा हो गई होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर तो बहरहाल ये मुमकिन नहीं था कि उन्हें मुहज़्ज़ब बनाया जा सकता। और फिर ये ब्रैकोडा के मफाद में बिल्कुल भी नहीं था। लिहाजा अफ्रीका की वैसी जिंदगी के आसार भी नजर आ रहे थे। बोनिका के लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे।
बस्ती के इतराफ में खेती बाड़ी के आसार भी नजर आ रहे थे। जमीन से पानी निकालने के लिए एक बाकायदा निज़ाम कायम कर दिया गया था, जिससे ये अफ्रीका के गैर मुहज़्ज़ब वैशी पूरा फायदा उठा रहे थे और उन्हें इसके इस्तेमाल का तरीकाकार भी सिखा दिया गया था। मैं इन तमाम चीज़ों का जायजा लेता रहा और एक बार फिर बस्ती की आबादी में दाखिल हो गया। अब मेरा रुख उस आतिशी बुत की जानिब था जो दिन में सिर्फ बूरे पत्थर का एक मुजस्मा नजर आता था, लेकिन रात में रोशन हो जाता था। मुजस्मा तवील व अरीज था। उसके कदमों में एक स्याह रंग का चबूतरा बना हुआ था, जिसके सामने के हिस्से में कुर्बान गाह नजर आ रही थी। इस कुर्बान गाह के सामने एक बड़ा सा प्याला जमीन पर बना हुआ था, जिसमें गाढ़ा गहरा स्याह खून जमा हुआ था। इसका मतलब था कि यहाँ इंसानों की कुर्बानी भी दी जाती थी। स्टीफन ब्रैकोटा ने यहाँ की वैशियाना रस्मों को जिंदा रखा हुआ था और इन वैशियों को मुतमईन रखने के लिए नहायत साइंटिफिक तरीके से काम लिया गया था, ताकि वो बिल्कुल ही उससे बरगश्ता ना हो जाए। मैं इस कुर्बानगाह से थोड़े से फासले पर खड़ा यहाँ के मनाजर देख रहा था। किसी ने मेरी जानिब तवज्जो नहीं दी। मेरी निगाहें इसी दौरान ऐसे लोगों को भी तलाश कर रही थी जो मेरे अंदाजे के मुताबिक अफ्रीका के बाशिंदे ना हों, बल्कि उनकी शक्लें अपनाकर उनमें घुल मिल गए हों। लेकिन मैं एक भी ऐसा शख्स तलाश ना कर सका और फिर वहां से हटकर मैं एक ऐसे हिस्से की जानिब जा निकला जिसे बाजार कहा जा सकता था। बाकायदा दुकानें नहीं थी, चीज़ों के अंबार जगह जगह लगे हुए थे और उनके अकब में उन्हें फरोख्त करने वाले मौजूद थे। पता नहीं खरीदो फरोख्त का यह तरीका किस बुनियाद पर था। मैं जायजा लेता रहा। लोग आते और अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल कर लेते। कोई किसी को कुछ देता और कोई कुछ ना देता और वो आगे बढ़ जाते। समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिलसिले में क्या निज़ाम कायम किया गया है। फिर मेरी निगाह एक शख्स पर पड़ी। ये एक दराज कामत बूढ़ा था, जिसकी गर्दन में अज़दा लिपटा हुआ था और लोगों का हुजूम उसके पीछे पीछे जा रहा था। बूढ़ा कुछ खब्तुल हवास मालूम होता था, मुकामी ही था। पता नहीं लोग उससे क्या कह रहे थे। वो बार बार उन्हें झिड़क देता था। फिर अचानक एक औरत उसके सामने पहुंच गई। उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा मौजूद था जो गालिबन सो रहा था। औरत बूढ़े के सामने रुक गई और रोते हुए उसने बच्चे को बूढ़े के कदमों में डाल दिया। बूढ़ा ठिठक कर रुक गया था। वो औरत का घूरता रहा और औरत रोती रही। फिर उसने बच्चे को देखा और उसके बाद उसने अपनी झोली में हाथ डालकर कोई चीज निकाली और इंतहाई बेदर्दी से बच्चे के मुंह में ठोंस दी। उसके बाद वो बच्चे को अपने पाँव से एक तरफ हटाता हुआ आगे बढ़ गया था। मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब क्या था। औरत के अंदाज से बड़ी अकीदत झलक रही थी। वो बच्चे को गोद में उठाकर खुशी खुशी एक तरफ चली गई। बूढ़ा कुछ कदम आगे बढ़ गया था। दफादन किसी ने मेरे शाने पर हाथ रख दिया और मैं एकदम चौंक पड़ा। पलट कर देखा तो बूढ़ को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। मेरे चेहरे पर एक लम्हे के लिए मुसर्रत और हैरत के आसार नमूदार हुए थे। चलते रहो चीफ, तमाशा देख रहे हो ना। इस पूरी बस्ती में खेल तमाशे बिखरे हुए हैं। तुमने उस शख्स को देखा? हाँ, ये वही डॉक्टर विच है और यहाँ लोगों का इलाज करता है। बहुत बड़ा आलम है इस इलाके का। हूँ, और लोग इससे अकीदत रखते हैं बहुत ज्यादा। अगर यकीन ना हो तो सानी से पूछ लो, बूढ़ ने कहा और अपने साथ कुछ फासले से आने वाली लड़की की तरफ इशारा कर दिया। मैं मुतईराना निगाहों से पलटकर देखने लगा। लड़की तकरीबन 18-19 साल की थी। बहुत ही खूबसूरत जिस्म की मालिक और खदोखाल भी अफ्रीकी होने के बावजूद दिलकश थे। उसकी स्याह आंखों में मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। वो बुढ़ के करीब पहुंच गई और बुढ़ अफ्रीकी जबान में उसे मेरे बारे में बताने लगा। लड़की शायद बुढ़ की टूटी फूटी जबान समझ रही थी और उसने हंसते हुए गर्दन हिलाई और फिर कुछ कहा। सानी का कहना है कि ये विच डॉक्टर यहाँ बहुत मकबूल है, लेकिन अपनी मर्जी से इलाज करता है। किसी को काबिले इलाज समझता है तो इलाज करता है, वरना अपना अज़दा उस पर छोड़ देता है ताकि उसकी जिंदगी के तकलीफ दे लम्हात मुख्तसर हो जाएं। ये अज़दा नहीं है, बड़ी नस्ल का सांप है जो इंतहाई जहरीला है। वो लोगों को विच डॉक्टर के इशारे पर काट लेता है और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। तब तो वो बड़ा खतरनाक आदमी है। सूरत से मालूम नहीं होता। तुमने शायद उस पर गौर नहीं किया चीफ, बूढ़ ने कहा। मैं तो तुम पर गौर कर रहा हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैंने सवाल किया। सानी से मैंने जिंदगी भर के दो पैमा कर लिए हैं। इससे वादा किया है कि अब कभी वापस सान बिन नहीं जाऊंगा। हूँ तो तुम अपनी आवारगी में मसरूफ हो गए हो। तुम कुछ भी समझ लो चीफ, मेरा ख्याल है हमें बहुत ज्यादा देर तक गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तुम वापस कब आओगे? दरअसल सानी पर अपनी मोहब्बत का मुकम्मल एतमाद कायम कर लूँ, फिर वापस पहुँच जाऊँगा और तुम्हारे लिए बहुत सी मालूमात भी लेकर आऊँगा। अब मैं चलता हूँ।
बुढ़ ने कहा और मैंने बेपरवाही से शाने उचका दिए। बुढ़ सानी का बाजू पकड़कर आगे बढ़ गया था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बुढ़ जहाँ होता अपने लिए तफरियात ढूंढ ही निकालता था। अब इस लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए उसे न जाने क्या क्या कुछ करना पड़ा होगा। दफतनी मेरे ज़हन में एक ख्याल पैदा हुआ था, अगर मैं भी यहाँ पर किसी से शनासाई पैदा कर लूँ तो ये मेरे लिए मुफीद साबित हो सकता था। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाकर आगे बढ़ गया। विच डॉक्टर अब निगाहों से उजल हो चुका था, लेकिन बस्ती का चक्कर लगाते हुए एक बार फिर वो मेरी नजरों में आ गया और मैं अपने ज़हन में एक फैसला करके वहीं खड़ा हो गया। उसकी हरकत और सकनात अजीब थी। ऐसा महसूस होता था जैसे वो बस्ती के मुख्तलिफ गोशों का गश्त कर रहा है। मैं भी कुछ फासला बरकरार रखते हुए उसकी निगरानी करने लगा। तकरीबन 3 घंटे उस विच डॉक्टर ने बस्ती में गुजारे और फिर वहां से आगे बढ़ गया। मैं बड़ी एहतियात से उसका ताकुब करने लगा। न जाने क्यों ये विच डॉक्टर मुझे बेहद पुरस्रार महसूस हुआ। विच डॉक्टर बस्ती के झोंपड़ियों के दरमियान से निकल आया और अब उसका रुख उन चट्टानों की तरफ था जो बस्ती से कुछ फासले पर नजर आ रही थी। रास्ते में जगह जगह झाड़ियां और दरख्त मौजूद थे और उनकी आड़ में उस शख्स का ताकुब करना कोई मुश्किल काम नहीं था। चुनाचे में उनकी आड़ लेता हुआ उसके पीछे पीछे चलता रहा। पहाड़ी टीलों का वसी हुआ अरीज सिलसिला करीब आ गया तो मैंने देखा कि अक्सर टीलों के दामन में गारों के दाने मौजूद थे। मैं उसकी निगाहों से बचने के लिए अब टीलों की आड़ ले रहा था। बाज़ औक़ात मुझे चंद लम्हात के लिए रोपोश भी होना पड़ता था। ऐसे ही एक मौके पर जब मैं टीले की आड़ से निकला तो वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने परेशानी से इधर से उधर देखा, फिर एक टीले पर चढ़कर चारों तरफ निगाहें दौड़ाईं, लेकिन विच डॉक्टर का कहीं पता नहीं था। साफ जाहिर था कि वो टीलों में से मौजूद किसी गार में दाखिल हो गया है। इससे ज्यादा जुस्तजू करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। थोड़ी देर तक मैं उन टीलों की तरफ में चक्कर लगाता रहा और फिर वापसी के लिए पलट पड़ा। अपनी क़यामगाह तक पहुंचने के लिए बस्ती से ही गुजरना पड़ता था, लेकिन जब एक बुलंद टीले पर चढ़कर मैंने बस्ती की तरफ देखा तो मुझे अपनी दाहिनी सिमत एक पगडंडी सी नजर आई जो खासी दूर तक चली गई थी और ये रास्ता एक दूसरे मेहमान कबीले के दरमियान से होता हुआ हमारे पड़ाव तक मुझे पहुंचा सकता था। चुनाचे मैंने उसी तरफ से सफर का आगाज कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने लोगों के पास पहुंचने का जो प्रोग्राम बनाया था वो गलत था। ये रास्ता सीधा नहीं जाता था बल्कि काफी टेढ़ा मेढ़ा होकर गुजरता था। इतराफ में दरख्त फैले हुए थे और इन दरख्तों के दरमियान से गुजरने का कोई रास्ता नहीं था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे पलट पड़ना चाहिए और सीधे रास्ते से अपने पड़ाव का रुख करना चाहिए। अभी मैं वापस पलटा ही था कि बाईं सिमत मुझे एक छोटी सी झील नजर आई जो घास के दरमियान घिरी हुई थी। बेख्तियारी मेरे कदम उस झील की जानिब बढ़ गए थे और फिर मैंने उस लड़की को देखा जो झील के पानी से बाहर निकल रही थी। उसके बदन पर मुकामी लोगों की तरह पूरा लिबास नहीं था और उसका चेहरा भी यहाँ के बाशिंदों से मुख्तलिफ था। खदोखाल में एक नुमायां तब्दीली पाई जाती थी। इंतहाई तीखे नकूश थे। आंखों में भी भूरी भूरी पुतलियां नजर आ रही थी। उसने मुझे देख लिया था और हैरान सी निगाहों से मुझे घूरे जा रही थी। मैं बेइख्तियार उसकी जानिब चल पड़ा और उसके नजदीक पहुंच गया। तब लड़की ने मानूस जबान में कुछ अल्फाज कहे और मैं एमको की तरह उसकी शक्ल देखता रहा। लड़की बेइख्तियार हंस पड़ी थी। फिर उसने एक और जुमला कहा जिसने मुझे शदीद हैरत का शिकार कर दिया। क्या बेवकूफ़ों की तरह देख रहा है एम कहीं का। हैरत मुझे इसलिए हुई थी कि यह जुमला अंग्रेजी जबान में अदा किया गया था और अंग्रेजी भी नहायत पुख्ता। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि इस लड़की का ताल्लुक किसी न किसी तरह स्टीफन ब्रैकोडा से हो सकता है और उसके अंग्रेजी बोलने की यही वजह है। चुनाचे मैंने लम्हा भर में एक फैसला कर लिया और अंग्रेजी ही में उसे मुखातब किया। तुमने पहले जो जबान इस्तेमाल की थी वो मेरे लिए नामानूस थी। लड़की का चेहरा मुझसे ज्यादा हैरत ज़दा हो गया। मैं तो तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में? उसने सवाल किया। यही कि तुम इंतहाई हुसीन लड़की हो, मैंने अंग्रेजी में जवाब दिया। उसका अंग्रेजी बोलने का अंदाज इंतहाई नफीस था, मुझे बहुत पसंद आया था। मेरे इस जवाब पर वो हंस पड़ी। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, हैरतनाक तो तुम मुंह की सुलिये में नजर आने के बावजूद इतनी उम्दा अंग्रेजी बोल रहे हो। यही हैरत मुझे भी तुम्हें देख कर हुई है। मेरी बात मुख्तलिफ है। क्या नाम है तुम्हारा? अली, मैंने जवाब दिया। ए ली, क्या तुम मोजील के आदमी हो? मोजील के लोगों में तो तुम्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने जवाब दिया। गोया तुम मोजील ही के आदमी हो। लड़की की मुस्कुराहट अचानक रुखसत हो गई। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं मोजील का आदमी नहीं तो जाहिर है मैं यकीन नहीं करूँगी।
और अगर तुम्हें ये यकीन आ जाए कि मैं मोज़ील का आदमी नहीं हूँ तो तब पता नहीं तुम कैसी गुफ्तगू कर रहे हो, उसने कहा और पलट कर वापस चल दी। सुनो, ये गलत बात है, तुमने मुझसे मेरा नाम पूछ लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम पूछ के क्या करोगे? मैं किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं रखती, ये मेरे बाप का हुक्म है। फिर भी कम से कम अपना नाम तो तुम्हें बताना ही चाहिए, जबकि तुमने मुझसे मेरा नाम पूछा है। अजीब आदमी हो। मेरा नाम ऐना है और तुम्हारे बाप का नाम हुंदोवे है, लड़की ने कहा। ऐना हुंदो। मैंने कहा, ऐना अगर मैं तुम्हें वाकई यकीन दिला दूं कि मैं मोज़ील का आदमी नहीं तो तुम्हारा रवैया मेरे साथ क्या होगा? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूँ। लड़की चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर ये अखबार की हंस पड़ी। बस अब जाओ प्लीज, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। कमाल है, कम से कम जबान के रिश्ते से तो हम दोनों को दोस्त होना चाहिए था। लेकिन मैं मोज़ील के किसी आदमी से गुफ्तगू नहीं कर सकती। मैं मोज़ील का आदमी नहीं, इस बात पर यकीन कर लो, मैंने जवाब दिया। वो बेयकीनी के अंदाज में मुझे देखती रही, फिर बोली, मोज़ील के आदमी नहीं हो तो इस सुलिये में यहाँ क्यों हो? इसका जवाब जरा तफसील से ही दिया जा सकता है। अगर तुम मेरे पास थोड़ी देर बैठना पसंद करो तो। अब देखो ना, तुम इतनी उम्दा अंग्रेजी बोल रही हो, लेकिन तुम्हारा लिबास यहाँ के लोगों का सा है। मगर तुम्हारा चेहरा यहाँ के लोगों का सा नहीं। यहाँ कोई भी तुम्हारा मद्दे मुकाबिल नहीं हो सकता। क्या तुम इस इलाके की सबसे हुसीन लड़की नहीं हो? ओ नहीं, मोज़ील की दूसरी लड़कियां भी हैं, वो सब यहाँ की नहीं है। यहाँ के बाशिंदों के खदोखाल वाकई खराब होते हैं। तुम कौन हो? मैंने कहा ना ऐना, तुम कौन हो? मैंने कहा ना ऐना, और बस इससे ज्यादा मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर सकती। लड़की ने जवाब दिया और तेज तेज कदमों से वापस जाने लगी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा, लेकिन बहुत से सवालात मेरे ज़हन में चकराने लगे थे। लड़की जब निगाहों से ओझल होगी तो मैं वापसी के लिए पलट पड़ा। मोज़ील मोज़ील, मेरे ज़हन में यही लफ्ज़ चकरा रहा था। फिर मैं वापस उसी जगह पहुंचा जहां से सीधा रास्ता इख्तियार किया जा सकता था, और थोड़ी देर के बाद मैं अपने साथियों के दरमियान पहुंच गया। प्रोफेसर जोनाथन भी इस वक्त मौजूद नहीं था।